بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں دھند کے باعث موٹر وے M2 پر بڑی گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جبکہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، تیز رفتاری سے گریز کریں، اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ اختیار رکھیں۔ ترجمان موٹر وے نے کہا کہ دوران سفر گاڑیوں میں فوگ لائٹس کا بھی استعمال کریں۔ دھند کے باعث موٹر وے M2 پر بڑی گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ شہری دن کے اوقات کو سفر کو ترجیح دیں۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا بتانا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، تیز رفتاری سے گریز کریں اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ تفصیلات جانتے ہیں توقیر اکرم۔ توقیر بتائیے گا۔ M2 لاہور سے کوٹ مومن تک بند کی گئی ہے اور یہاں پر بھاری ٹریفک جو ہے اس کا بھی داخلہ ممنوع کر دیا گیا ہے۔ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ دھند کی وجہ سے M2 کو بھی بند کر دیا جائے گا، کیونکہ جس طرح سے وقت گزر رہا ہے دھند میں اضافہ ہوتا دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، اور اسی حوالے سے جو موٹر وے انتظامیہ ہے، ترجمان موٹر وے ان کی جانب سے واضح طور پر یہ پیغام دیا گیا ہے تمام شہریوں کو کہ اپنی گاڑیوں پر جو ہے وہ فوگ لائٹ کا استعمال ضرور کریں اور محفوظ سفر کے جو اوقات بتائے جا رہے ہیں ترجمان موٹر وے کی جانب سے وہ 10 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک ہیں۔ اس ٹائم کے دوران جو ہے وہ محفوظ سفر موٹر وے پہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دھند میں اضافے کی وجہ سے حادثات کا بھی خطرہ بڑھنے لگتا ہے اور اسی وجہ سے موٹر وے کو بند کیا جاتا ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے، اور اسی حوالے سے شہریوں کو بھی رہنمائی بارہا دفعہ دی جاتی ہے موٹر وے انتظامیہ کی جانب سے اپنی گاڑیوں پر فوگ لائٹ کا استعمال کریں اور جو محفوظ اوقات کار ترجمان موٹر وے کی جانب سے بتائے جا رہے ہیں اسی اوقات میں سفر کریں۔ جی بالکل، ترجمان موٹر وے پولیس کی جانب سے شہریوں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ توقیر اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلاً آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ شہر سردی کی لپیٹ میں آ گیا۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت 60 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 95% رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا کوئی امکان نہیں۔ آلودگی نے بھی لاہور کا پیچھا نہ چھوڑا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 205 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دھند بھی اپنے عروج پر ہے۔ شہر سردی کی لپیٹ میں آ گیا۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 95% رہا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں۔ موسم سرد رہے گا۔ دوسری جانب فضائی آلودگی کی صورتحال بھی بہتر نہ ہوئی۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 205 ریکارڈ کیا گیا۔ سول سیکریٹریٹ میں آلودگی کی شرح 232 جبکہ ملتان روڈ پر 221 ریکارڈ کی گئی۔ عسکری 10 میں آلودگی کی شرح 209، اقبال ٹاؤن 194، بیدیا روڈ 192، DHA فیز 5 186، ماڈل ٹاؤن 183 اور گلبرگ 2 میں 180 ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین نے شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے سے گریز اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ لاہور ڈیجیٹل سٹی سیکیورٹی کا نیا نظام تیار کر لیا گیا۔ اسلام آباد طرز کا M-Tag سسٹم نافذ ہوگا۔ گاڑیوں کے لیے M-Tag لازمی، کوئی گاڑی نظروں سے اوجھل نہیں رہے گی۔ اب ہر موومنٹ پر نظر ہوگی۔ سارا ریکارڈ ایک کلک پر دستیاب ہوگا۔ M-Tag کے ذریعے چوری شدہ گاڑیوں کی فوری شناخت ممکن ہو سکے گی۔ لاہور میں تمام گاڑیوں پر M-Tag لگے گا۔ لاہور پولیس نے M-Tag سسٹم لانے کی سفارشات تیار کر لیں۔ M-Tag نمبر پلیٹ پر نصب الیکٹرانک چپ ہوگی۔ M-Tag کے ذریعے گاڑیوں کا مکمل ریکارڈ آن لائن دستیاب ہوگا۔ لاہور پولیس نے M-Tag کے حوالے سے سفارشات کی سمری ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھجوا دی۔ M-Tag سے چوری شدہ گاڑیوں کی فوری نشاندہی ممکن ہوگی۔ M-Tag سسٹم سے جعلی نمبر پلیٹس کا خاتمہ کیا جا سکے گا۔ غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کے خلاف کارروائی میں مدد ملے گی۔ M-Tag سے شہر میں داخل ہونے والی اور شہر سے جانے والی گاڑیوں کی مانیٹرنگ ممکن ہوگی۔ M-Tag سسٹم سے ٹریفک مینجمنٹ اور شہری سیکیورٹی بہتر بنائی جائے گی۔ لاہور کی پہچان ریلوے اسٹیشن کو نئی لک دینے کا فیصلہ۔ ایئرپورٹ کی طرز پر ٹریفک ری ماڈلنگ کا آغاز۔ جدید ان آؤٹ سسٹم لایا جائے گا۔ اسٹیشن کو عالمی معیار کا آئیکن بنانے کا ماسٹر پلان تیار کر لیا گیا۔ مسافروں کو بدترین رش سے نجات ملے گی۔ مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 54 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی۔ داتا دربار کمپلیکس کے توسیعی منصوبے میں 4 ارب 39 کروڑ کے لیے پری کوالیفیکیشن جاری۔ محکمہ خزانہ نے 3 محکموں کو تنخواہوں اور آپریشنل اخراجات کا بجٹ جاری کر دیا ہے۔ سیکٹرز کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 54 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی۔ لاہور، سرگودا، خانیوال اور شیخوپورہ میں
एक्वा बिजनेस हब्स के कयाम के लिए 49 अरब रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के कयाम के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी शामिल है। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का माली साल 2025-26 के सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 56वें इजलास में अहम फैसले किए गए। दाता दरबार कम्प्लेक्स के तौसी मंसूबे में 4 अरब 39 करोड़ रुपए के मंसूबे के लिए प्री क्वालिफिकेशन जारी। तौसी मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। मंसूबे के लिए ई टेंडरिंग के जरिए अमल का आगाज कर दिया गया। दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 22 जनवरी 2026 मुकर्रर की गई। हुकाम के मुताबिक मंसूबे में सिर्फ वही फर्में हिस्सा लेने की अहल होंगी जो प्री क्वालिफाइड होंगी। दाता दरबार के तौसी मंसूबे में जायरीन की सहूलत, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जामे ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी शामिल किया गया है। महकमा खजाना ने 3 महकमों को तनख्वाहों, ऑपरेशनल अखराजात का बजट जारी कर दिया। पंजाब पुलिस को तनख्वाहों और ऑपरेशनल अखराजात के लिए 44 अरब रुपए जारी किए गए हैं। महकमा ज़राअत को तनख्वाहों की मद में 5 अरब 90 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। महकमा CNW को तनख्वाहों और ऑपरेशनल अखराजात के लिए 6 अरब 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने बजट जारी करके ऑनलाइन कर दिया। दूसरी जानिब महकमा बल्दियात ने रवां माली साल में अंदरून शहर की 3 तरक्याती स्कीमें अगले साल में डाल दी। भाटी गेट, देहली गेट और शाह आलम गेट के पार्किंग प्लाजा की स्कीमें अगले साल के बजट में रख ली गईं। इन स्कीमों पर 13 अरब रुपए लागत आएगी। दुकानें गिराने की वजह से ये 3 स्कीमें आइंदा साल के लिए मुलतवी कर दी गईं। PND बोर्ड ने 3 स्कीमें अगले माली साल के बजट में रख दी हैं। और यहाँ आपको बताएं कि तालीम का हाल या बदहाली का जाल। 48% सरकारी स्कूल खेल के मैदानों से महरूम है। सरकारी स्कूलों में कहीं बिजली तो कहीं दीवारें गायब हैं। 11% स्कूलों में सीवरेज सिस्टम नाकारा है। सरकारी आदादोशुमार ने पोल खोल दिया। क्या हमारे बच्चे इन्हीं खंडात नुमा स्कूलों में पढ़ेंगे? सरकारी स्कूलों में सहूलियात का फुकदान। लाहौर समेत पंजाब के 48% सरकारी स्कूलों में खेल के मैदान ही नहीं, 12% स्कूलों में सीवरेज का निजाम भी मौजूद नहीं। महकमा स्कूल एजुकेशन की स्कूल शुमारी की रिपोर्ट ने सरकारी स्कूलों में सहूलियात की कमी का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2% सरकारी स्कूल्स में बाउंड्री वॉल ही मौजूद नहीं, 1% स्कूल्स में बिजली और 1% स्कूल्स में पानी की सहूलत मुयस्सर नहीं। इसी तरह 1% स्कूल्स में ताहाल टॉयलेट नहीं। दूसरी जानिब महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि स्कूल्स में सहूलियात फराहमी के लिए काम जारी है। तमाम अजला को बजट भी जारी किया जा चुका। CEOs को 3 माह में सहूलियात का फुकदान दूर करने का टास्क दिया गया। अब यहाँ पर बात करेंगे पंजाब के जेलों में एड्स और हेपेटाइटिस फैलने का खतरा। जेलों में एड्स हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग किट्स नापैद हो गई। नए आने वाले कैदियों की स्क्रीनिंग बंद, जबकि जेल के अस्पतालों में अद्वियात की भी किल्लत है। डॉक्टर्स की कमी भी दूर ना हो सकी। सलाखों के पीछे से सख्ती जिंदगी, अद्वियात ना मिलने पर कैदी बेयारो मददगार। महकमा सेहत व आबादी की संगीन लापरवाही के बाइस पंजाब भर की जेलों में कायम अस्पतालों में तिबी सहूलियात का शदीद फुकदान है। जेल अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमले की कमी का सामना है। जेल के अस्पतालों में टेस्टिंग किट्स और अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। हेपेटाइटिस B, C, HIV स्क्रीनिंग किट्स ही दस्तयाब नहीं है। टेस्टिंग किट्स ना होने की वजह से जेलों में नए आने वाले कैदियों के टेस्ट रुक गए हैं। रूल्स के मुताबिक नए आने वाले कैदियों के हेपेटाइटिस एड्स स्क्रीनिंग टेस्ट लाजमी है, लेकिन इस वक्त ये अमल तातुल से दोचार है। जेल के अस्पतालों में कैदियों के लिए अद्वियात की भी शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से बीमार कैदियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गरीब और मिडिल क्लास तबके से मुर्गी भी दूर होने लगी। 11 रुपए इजाफे से मुर्गी के गोश्त की कीमत छठी सेंचुरी के करीब पहुंच गई। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपए किलो हो गई। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में दुकानदार मनमानी कीमतों पर फल और सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। गरीब और मिडिल क्लास तबके से मुर्गी भी दूर होने लगी। 11 रुपए इजाफे से मुर्गी के गोश्त की कीमत छठी सेंचुरी के करीब पहुंच गई। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपए किलो हो गई। शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। साफी गोश्त 700 रुपए किलो की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। मार्केट में जिंदा ब्रायलर के निर्ख भी बुलंद सतह पर हैं। फार्म रेट 383 रुपए, थोक 397 रुपए और परचून सतह पर जिंदा ब्रायलर 411 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अंडों की कीमत 320 रुपए फी दर्जन हो गई।
दूसरी जानिब ओपन मार्केट में दुकानदार मनमानी कीमतों पर फल और सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। प्याज की सरकारी कीमत 55 रुपए, बाजार में 100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। टमाटर देसी की सरकारी कीमत 65, जबकि बाजार में 120 रुपए किलो। लहसुन देसी का सरकारी निर्ख 150, जबकि ओपन मार्केट में 180 तक फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद की सरकारी कीमत 120, जबकि बाजार में 180। मौसमी की सरकारी कीमत 156, जबकि बाजार में 300 दर्जन। किन्नू दर्जन सरकारी कीमत 210, बाजार में 350 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने ज़िला इंतजामिया से अशिया ज़रूरिया की कीमतों में रिलीफ का मुतालबा किया है। पंजाब में फालिज के इलाज के निज़ाम में बड़ी तोसी की तैयारी कर ली गई। महकमा सेहत ने स्ट्रोक इलाज की सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी हैं। फालिज के इलाज के लिए पहले साल 1 अरब 20 करोड़ रुपए दरकार होंगे। स्ट्रोक सेंटर्स 15 से बढ़ाकर 54 किए जा रहे हैं। फालिज के इलाज का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। स्ट्रोक सेंटर की तादाद में इजाफा होगा। पहले साल में फालिज के जदीद इलाज पर तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ रुपए लागत आएगी। महकमा सेहत ने स्ट्रोक इलाज की सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। महकमा सेहत ने सिफारिश की है कि मरहलावार बुनियादों पर प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर्स की तादाद 15 से बढ़ाकर 54 की जाए। माली साल 2025-26 में कम से कम 30 सरकारी अस्पतालों में फाल सीटी स्कैन की बुनियाद पर टीपीए टीएन के इलाज शुरू किया जाए। 2026-27 तक इस सहूलत को तमाम जिले हेडक्वार्टर्स अस्पतालों तक तौसी दी जाए। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वक्त मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी की सहूलत सिर्फ लाहौर और रावलपिंडी के 2 मराकज तक महदूद है। महकमा सेहत के मुताबिक बरवक्त इलाज से माजूरी और अमवात में नुमाया कमी मुमकिन हो सकेगी। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात 2026 ताखीर से शुरू करने का फैसला। लाहौर बोर्ड के तहत इम्तहानात 27 मार्च से शुरू होने का इम्कान है। इम्तहानात ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद शुरू होंगे। दूसरी जानिब पंजाब में मरबूते इम्तहानात के लिए नए कवायद नाफिज कर दिए गए। 4 साल बाद 8वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात के लिए पेक्टा ने पहली बार इम्तहानी मराकज के लिए स्कूल मैपिंग का आगाज कर दिया है। रवां साल रमजानुल मुबारक के 22 मैट्रिक सालाना इम्तिहानात 2026 ताखीर से शुरू करने का फैसला किया गया है। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक सालाना इम्तिहानात 27 मार्च से शुरू होने का इम्कान है। मैट्रिक सालाना इम्तिहानात ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद शुरू होंगे। लाहौर बोर्ड ने 27 मार्च से इम्तिहानात शुरू करने की इजाजत मांग ली। पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन्स की मंजूरी के बाद मैट्रिक सालाना इम्तिहानात के लिए हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा। दूसरी जानिब पंजाब में मरबूत इम्तिहानात के लिए नए कवायद नाफिज। 4 साल बाद 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के लिए पेक्टा ने पहली बार इम्तिहानी मराकिज के लिए स्कूल मैपिंग का आगाज कर दिया। 8वीं जमात के इम्तिहानी मराकिज में तलबा की कम से कम तादाद 50, ज्यादा से ज्यादा 300 मुकर्रर की गई। तलबा के लिए इम्तिहानी मरकज स्कूल से 10 किलोमीटर के दायरे कार में होगा। लड़कों और लड़कियों के लिए इम्तिहानात अलहदा अलहदा इम्तिहानी सेंटर्स होंगे। स्कूल बेस्ड इम्तिहानी मरकज के इंतखाब की इजाजत नहीं होगी। स्कूल मैपिंग और इम्तिहानी डाटा ऑनलाइन ऐप के जरिए मुकम्मल किया जाएगा। दाखिलों का अहदाफ पूरा करने पर पैफ के मातहत 20,000 से ज्यादा पार्टनर स्कूलों में जाली इनरोलमेंट। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने बेफॉर्म के बगैर दाखिल हजारों बच्चों के दाखिले मुस्तरद कर दिए। पैफ हुकाम का नॉट वेरीफाइड बच्चों की तस्दीक के लिए बेफॉर्म फौरी जमा करवाने का हुक्म। जाली इनरोलमेंट साबित होने की सूरत में मुतलका स्कूल का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। दाखिलों का अहदाफ पूरा करने के लिए पैफ के मातहत 20,000 से जायद पार्टनर स्कूल्स में जाली इनरोलमेंट की गई। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने बेफॉर्म के बगैर दाखिल हजारों बच्चों के दाखिले मुस्तरद कर दिए। बेफॉर्म के दाखिले पार्टनर स्कूल्स में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक किए गए थे। पैफ हुकाम के मुताबिक तालीमी 2025-26 के लिए नए दाखिलों की तस्दीक 12 जनवरी से की जाएगी। पैफ हुकाम ने नॉट वेरीफाइड बच्चों की तस्दीक के लिए बेफॉर्म की फौरी जमा करवाने का हुक्म दे दिया। पैफ की इंस्पेक्शन टीमें 12 जनवरी से स्कूल्स का विजिट करेंगी। जाली इनरोलमेंट साबित होने की सूरत में मुतलका स्कूल का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। ओवर टाउन फिरोजपुर रोड पर बिजली के मीटर्स तारों के साथ झूल रहे हैं। बिजली के नंगे तार इलाका मकीनों के लिए खौफ की अलामत बन गए। बेहंगम तारों के बायस इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। कहते हैं फौरी तौर पर बिजली के तारों को महफूज बनाया जाए। मुमकिन हादसा से बचाव के लिए हंगामी बुनियादों पर अमली इकदाम किए जाएं। तलत पार्क बाबू साबू के इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, कच्ची और खस्ता हाल सड़कों के बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि गैस और साफ पानी जैसी
बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं हैं। रिहायशियों ने हुक्काम से फौरी नोटिस लेने और मसाइल के हल का मुतालबा किया है। नबीपुरा चमन पार्क का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। मुतादिद गलियों में पानी जमा होने से इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। मकीनों के मुताबिक मुतादिद बार शिकायत के बावजूद मुतलका इदारे कोई नोटिस नहीं ले रहे। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि सीवरेज का मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। फेरोजपुर रोड मुस्तफाबाद में साफ पानी की किल्लत का दरीना मसला हल ना हो सका। इलाके का वाहिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फनी खराबी के बायस कई माह से बंद पड़ा है। मकीनों का कहना है कि घरेलू इस्तेमाल के लिए साफ पानी मुयस्सर न होने के बायस अक्सरियत को मजबूरन पानी खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इंतजामिया दी गफलत दा नतीजा बड़ी दफा असी कंप्लेन की है लेकिन साडी कोई भी नहीं आवाज़ सुनता। टूटियां इत्थे चोरी हो गई, सारा कुछ कूड़े का ढेर बनता पाया, कोई इंतजामिया नहीं कर रही। साडी मरियम नवाज अगे अपील है कि साडी दरखास्त जरा कबूल की जाए। असी खरीद के पानी जिहड़ा हैगा ना थक गए हैं, सानू तो साफ पानी भी लियाने वास्ते भावड़े मार्केट जाना पैंदा है। शहरियों ने आला हुक्काम से नोटिस लेते हुए मसाइल के हल का मुतालबा किया है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पहला कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। हॉकी स्टेडियम में 55,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला ने कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स प्रोजेक्ट का डिजिटल इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मरीम नवाज की हॉकी स्टेडियम आमद पर कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स ने भरपूर जोश व खरोश का मुजाहरा किया। वज़ीर आला ने डिजिटल बटन दबाकर कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला हौसला अफजाई के लिए हॉकी स्टेडियम के ट्रैक पर हर इंक्लोजर के सामने पहुंची। तवील चक्कर लगाकर हर ज़िले से आने वाली कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स का खैर मकदम किया। वज़ीर आला ने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का पोर्ट्रेट थामे बच्ची की खुद तस्वीर बनाई। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स के नारों का हाथ हिलाकर जवाब दिया। धुनी बिखेरते बैंड के पीछे कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स के दस्ते ने मार्च पास किया। वज़ीर आला मरीम नवाज को कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स के दस्ते ने सलामी पेश की। मरीम नवाज के खिताब से पहले आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहरा, आसमान पर रंग बिखर गए। तकरीब में कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स प्रोजेक्ट के बारे में दस्तावेजी फिल्म पेश की गई। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने पुरजोश खिताब किया। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स ने मोबाइल की लाइट्स ऑन करके मेहमानों का खैर मकदम किया। मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स प्रोग्राम की इब्तिदाई तकरीब वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की खुसूसी शिरकत। कहते हैं कि वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में सूबा अमन, तरक्की और खुशहाली की नई मनाजिल तय कर रहा है। लाहौर में कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, शोबा सेहत में मरीम नवाज का वीएन रंग ला रहा है। मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब बढ़ेगा, फूलेगा, आगे जाएगा और प्रोग्रेसिव पंजाब ही बेहतर पाकिस्तान का ज़ामिन है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि आज 2 करोड़ से ज़्यादा अफराद 1000 क्लिनिक ऑनवेल्स की तिब्बी सहूलियात से मुस्तफ़िद हो चुके हैं। मोबाइल अस्पताल 50 लाख से ज़्यादा अफराद को इलाज मुआवजे की सहूलियात फ्राहम कर चुके हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, 2500 मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक 15 लाख अफराद को तिब्बी सहूलियात फ्राहम कर चुके हैं। दही मराकज़ से जहाँ पहले सर्जरीज नहीं होती थी वहाँ 16,000 से ज़ायद सर्जरीज की जा चुकी हैं। 70 लाख से ज़्यादा बच्चों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन फ्राहम की गई। 16 अजला में कैथ लैब का क़याम अवामी खिदमत के अज़्म की अमली ताबीर है। अब यहाँ पर बात करें वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासिन की ज़ेर सदारत इजलास। सुबह भर में नालों की सफाई, मैनहोल्स कवरिंग की हिदायत जारी। वासस को मशीनरी और मुलाजमिन के यूनिफॉर्म का यकसा नफाज मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बिलाल यासिन की ज़ेर सदारत वासा हेड क्वार्टर में आला सतह इजलास हुआ। DG वासा पंजाब तैयब फरीद और तमाम अजला के MDs ने बज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। सूबाई वज़ीर ने तमाम वासा मशीनरी और मुलाजमीन के यूनिफॉर्म का यकसा नफास रवा माह मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा कि गैर तसली बख्श कारकर्दगी वाले अफसरान की इस निज़ाम में कोई जगह नहीं। सूबे भर में नालों की सफाई और मैनहोल्स को रंग ना करने पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। मैनहोल कवर्स की मॉनिटरिंग और ज़ीरो कंप्लेंट के लिए तमाम अजला में टीमों की तश्कील कर दी गई। बिलाल यासीन ने कहा कि कल से तमाम अजला का दौरा करूँगा और कारकर्दगी का जायज़ा फील्ड से लिया जाएगा। सूबाई वज़ीर मेहनत मंशौला भट्ट का शादरा सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में नई एमरजेंसी का इफ्तिताह। कमर्शियल पैसी राय जुल्फ़िकार अली खर MPA समीउल्लाह खान हमरा थे। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में फंड्स की मंजूरी की यकीन दहानी करवाई गई। वज़ीर मेहनत और इंसानी वसाइल मंशौला भट्ट की जानिब से शाहदरा सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में नई एमरजेंसी का इफ्तिताह कर दिया गया। मंशौला भट्ट ने कहा, यहाँ के लोगों को दूर अस्पतालों का रुख करना पड़ता था, अब तमाम तिब्बी सहूलियात यहाँ मैसर होंगी। नवाज साहब की हिदायत के मुताबिक काम कर रहे हैं। अब पहले 6 बेड से शायद अब ये 20 बेड का हो जाएगा।
اور نہایت تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچے۔ کمشنر پیسی رائے ذوالفقار علی کھرل نے بھی اظہار خیال کیا۔ شدرہ کے علاقے کے تقریباً 50,000 سے زائد رجسٹرڈ ورکر کے لیے ایک ضرورت کو محسوس کیا گیا، اور یہ عین وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایات کے مطابق ورکر اب پیسی کی لیبر ڈپارٹمنٹ کی ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہے، اس لیے آج منسٹر صاحب بھی تشریف لائے ہیں، وہ اس کو اپ گریڈ کریں گے اور اس کو انشاءاللہ اسٹیٹ آف دا آرٹ بنائیں گے۔ ایم پی اے سمیع اللہ خان نے کہا اسپتال میں بہترین انتظامات ہیں، مریض بھی مطمئن دکھائی دیے۔ آج منسٹر صاحب نے جس طرح یہاں اس کی توسیع جو ہو رہی ہے ہاسپٹل کی، اس کا سنگ بنیاد رکھا ہے، تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جو سوشل سیکورٹی کے ساتھ رجسٹرڈ ورکرز ہیں ان کی زندگیوں میں بہت آسانی پیدا ہوگی، ان کی صحت کی سہولیات میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ منشاء اللہ بٹ اور سمیع اللہ خان نے ایمرجنسی کی مرمت، نئے بیڈز کے لیے فنڈز کی منظوری کی یقین دہانی کروائی۔ کیمرامین احمد علی کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ آئی جی پنجاب سے ڈی ایس پی طارق کمبوج شہید کی بیٹی ماہنور طارق کی ملاقات۔ ماہنور طارق نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ماہنور طارق کو پی پی ایس سی امتحان میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ آئی جی پنجاب نے سخت محنت و لگن سے بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوانے پر طارق کمبوج شہید کی اہلیہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ آئی جی نے کہا کہ طارق کمبوج شہید کی اہلیہ نے محدود وسائل کے باوجود بیٹی کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے جدوجہد کی۔ پیشہ ورانہ ورکنگ کو سمجھ کر نئے آئیڈیاز کے تحت شہریوں کی بھرپور خدمت کریں، اختیارات صلاحیتوں کو ملک و قوم کی خدمت اور تعمیر و ترقی کے لیے استعمال کریں۔ اب یہاں پر بات کریں گے ریزیڈنشیا پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب۔ 100 سے زائد معروف ڈیولپرز کی شرکت۔ تقریب کا مقصد ایک نئے رہائشی منصوبے کا آغاز ہے جسے یونین ٹاؤن میں تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ریزیڈنشیا پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی، جس میں چیئرمین شامی گروپ عبدالحنان شامی، سی ای او شامی گروپ عمر شامی نے خصوصی شرکت کی۔ کہا کہ یہ پروجیکٹ جدید سہولیات اور معیاری تعمیرات پر مبنی ہوگا، رہائشیوں کے لیے ایک جدید اور آرام دہ طرز زندگی فراہم کریں گے۔ میں لوگوں کا اوورویلمنگ رسپانس دیکھ کے بہت خوش ہوں۔ الحمدللہ یہ پروجیکٹ چند ماہ پہلے اپنے معرض وجود میں آیا، بڑی تیزی سے اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی اور چند ہی ماہ میں 5 سے 6 ماہ میں اس کی سڑکوں کے بننے کے بعد آج یہ پوزیشن دے کر بلڈرز یہاں پہ اپنی کنسٹرکشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو بی ریزیڈنشیا کے نام سے یہ آج ایک پہلا پروجیکٹ یہاں اناؤنس ہوا ہے، 25 گھروں کا پروجیکٹ ہے۔ تو آئی ہوپ کہ مینی مور آر کمنگ، اور یہ اٹس اے ونڈرفل پروجیکٹ اینڈ میاں عامر صاحب اینڈ نعیم احمد ملک صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یونین ڈیولپرز کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے وہ پروجیکٹ بھی ان ٹائم ڈیلیور کیا اور لوگ وہاں پہ گھر بھی بنا رہے ہیں، اور اسی طرح دوسرے پروجیکٹس ہیں وہ بھی انہوں نے ڈیلیور کیے ہیں۔ یہ بھی جو پروجیکٹ ہے یہ لوکیشن کے حساب سے لاہور کے بالکل سینٹر میں آتا ہے۔ پھر اس کو جو گورنمنٹ کی روڈز ہیں، جو سرکاری روڈز ہیں، وہ بھی اس کو ہر طرف سے لگتی ہیں۔ سی ای او شریف کنسٹرکشن فیاض شریف کا کہنا تھا کہ ریزیڈنشیا پروجیکٹ کی ادائیگی کا نظام بھی بہت آسان رکھا گیا ہے۔ خریدار 2 سال کی قسطوں میں اپنی ادائیگیاں کر سکیں گے، صرف 20% ادائیگی کے بعد ہی خریدار کو قبضہ دیا جائے گا۔ اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہم نے جو رکھی ہے جسٹ 20% ہے، اور گراؤنڈ فلور کا جو اس کا ہم نے ریٹ رکھا ہے 1,20,00,000 روپے ہے، اور اسی طرح اس سے اوپر والا فلور ہے جس کو فرسٹ فلور کہتے ہیں وہ 1,10 ہے، اور اس سے اوپر والا لاسٹ فلور ہے، 3 ہی ٹوٹل اس میں فلور ہے، اس کا 95 لاکھ ہے۔ اور جسٹ ہم نے 1% اس کی انسٹالمنٹ پلان مرتب کیا ہے تاکہ ہر ایک بندے کی پہنچ میں آ سکے۔ سی ای او چٹھا پراپرٹی نعمت اللہ چٹھا کا کہنا تھا کہ لوگوں کا بہت مثبت رد عمل آیا ہے، منصوبہ علاقے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ٹاؤن ہاؤس بنانے جا رہے ہیں 25 کے قریب، ٹوٹل 75 یونٹ بنیں گے، اس کی ارتھ بریکنگ تھی آج۔ تو ماشاءاللہ کافی لوگ پورے لاہور سے ہمارے جو ریلیٹر ہیں پورے لاہور کے کونے کونے سے آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ 2 سال کا میرا پلان ہے پوزیشن کا، تو انشاءاللہ ہم اس سے پہلے کر کے دیں گے۔ منصوبے کا اہم کنیکشن رائمنڈ روڈ، ٹھوکر نیاز بیک اور رنگ روڈ سے ہوگا، جو علاقے کی رسائی کو بہت آسان بنا دے گا اور آمد و رفت میں سہولت فراہم کرے گا۔ کیمرامین افتخار کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔